Namaskar sabhi ko, and a very warm welcome to everyone. Firstly, to introduce myself, I am Mugdha Khandilwal, PhD scholar at Jamia Millia Islamia and co-convener Shodh Jamia Millia Islamia. And I will be moderator for this session. On behalf of Students for Holistic Development of Humanity, Shodh Foundation, I welcome you all to the session of UGC Net coaching classes of Paper 1, that is for Unit 4, Communication. This initiative was started with the aim of helping and supporting the students from all over the country to do well in higher studies and research. Shodh Foundation guiding the students for UGC NET preparations with quality resources, academic support, and highly qualified faculty since past 4 years. But before we delve into this, let us invoke the blessings of the goddess of Vidya. I now request Krishna Shekhar Sharma ji, a dedicated scholar from Central University of Karnataka and Shodh North Karnataka State Convener, to please place Saraswati Vandana and formally initiate this session. या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा Thank you, Krishna ji. Now, to share more about the vision, activities, and mission of Shodh, Students for Holistic Development of Humanity, I now invite Ragini ji, a dedicated scholar and Shodh convener from Central University of Karnataka. Ragini ji. Thank you, Mugdha. I'd like to greet everyone. Good evening. I am Ragini Rajpur from Central University of Karnataka. I would like to extend and share some information regarding Shodh. Shodh stands for Students for Holistic Development of Humanity. It's a national level initiative, a platform dedicated to building a vibrant, ethical, and inclusive research culture across India. Registered under the Companies Act 2013, Shodh is now active in more than 20 states and is steadily growing as a hub for research, dialogue, collaboration. And it is very much used by the researchers to collaborate with other researchers across different national institutions of our country. But what makes Shodh especially relevant is the fact that Shodh bridges the gap between the academic research and the real societal needs. Shodh regularly organizes seminars such as this one, panel discussions, methodology workshop, research internships, and other competitions, all designed to prepare the students across our nation, like you, for rigorous, high-quality research careers. The three core objectives of Shodh are to install research aptitude, second, to build research capacity, and third, to create a unified platform. In simple words, Shodh is here to help you evolve from an aspirant to academic change makers. Thank you so much. Thank you, Ragini ji, for articulating the spirit and scope of Shodh. Now, I would like to introduce our speakers and guest of honor for today, Ms. Janvi Thakur ji. Janvi ji is natively from Mandi, district of Himachal Pradesh. She completed her 10th and 12th from Laurento Convent Tara Hall and graduated from Center of Excellence Government Degree College, Sanjoli in 2020.
and then postgraduated with MSc in Geography from Himachal Pradesh University in 2022. She has qualified UGC NET and JRF in December 2022. Along with this, she has completed 1 year PG diploma in Disaster and Disaster Management, Himachal Pradesh University, and thereafter, currently she is enrolled in PhD in the Department of Geography, Himachal Pradesh University, since December 2023. And her area of research is climate change. She has presented six paper in she has presented paper in six national and one international seminar, and published three research papers, two in peer reviewed and one is Scopus Index Journal. Thank you. Over to you, Janvi ji. Thank you so much, Muktaji. And now let's just get back to the work for which we all have actually gathered. That is to continue our lecture on communication. I hope my voice is clearly audible to everyone and there is no kind of glitch. Right. So I'm sharing my screen with you all. Okay, so before starting this category of classifying communication, I would just give you a recap of what we actually did yesterday. Yesterday we started with कि जो communication है unit, उसमें कौन कौन से सब titles पे हमें ज़्यादा focus ले करना चाहिए from your net point of view, and what is the meaning of communication, and how we have to look into the definitions given by different scholars. What are the characteristics of communication? And we started doing the process or the entire channel of communication, dealing with the basic elements from sender to the receiver's end, and then we started categorizing communication. और उसकी बेसिस पे हमने कम्युनिकेशन को क्लासिफाई किया बेस्ड ऑन रिलेशनशिप, जिसमें हमने बात करी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ट्रांसपर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप एंड मास कम्युनिकेशन की, और साथ में हमने बात करी कि बेस्ड ऑन द चैनल वेदर इट इज वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद एक्चुअली कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर बात करें तो जो हमारा कम्युनिकेशन है वो किस तरह से डिवाइडेड होता है. सो इट इज कैटेगराइज्ड इनटू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. जब भी हम फॉर्मल की बात करते हैं यानी कि औपचारिक, तो ये एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें वी आर एक्चुअली फॉलोइंग ऑल द ऑफिशियल प्रोटोकॉल्स व्हाइल कम्युनिकेटिंग. ये या तो मैनेजर एंड एम्प्लॉय या सुपीरियर एम्प्लॉय और उसका जो जूनियर है उसके बीच में होती है, या बिटवीन अ पर्सन जो कि एक अथॉरिटेटिव रोल में है और दूसरा जो उससे सबऑर्डिनेट है. इस टाइप का कम्युनिकेशन ओरली भी किया जा सकता है और एक रिटन फॉर्मेट में भी. और इस कम्युनिकेशन की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है कि इस इंटायर कम्युनिकेशन का एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, जिससे हमें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का हमेशा आइडिया रहता है कि हु इज द पर्सन जिसने ये कम्युनिकेशन इनिशिएट किया, पूरी वार्तालाप पे कौन कौन सी चीजें या आइडियाज जो हैं वो एक्सचेंज की गई थी. अब इस कम्युनिकेशन को करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स इस्तेमाल होते हैं. लाइक ये कम्युनिकेशन सिंगल चेन हो सकता है, एक व्हील नेटवर्क में हो सकता है, सर्कुलर नेटवर्क में हो सकता है, या इट कुड इन इन्वर्टेड वी फॉर्मेशन. जब हम सिंगल चेन की बात करते हैं तो इट इज वेरी क्लियर कि एक मैसेज जो है वो दिया गया है फ्रॉम द सुपीरियर. Excuse me, madam. यस. Some participants are requesting to have it in bilingual, like English as well. ओके. Yes, ma'am. तो जो आपका actually the PPT will go in English only, but I'll explain that in Hindi also. I think that would be
efficient for the moment. Okay, madam. तो जब हम सिंगल चेन की बात करते हैं, यानी कि एक सिंगल डायरेक्शन या यूनी डायरेक्शनल वे में वो कम्युनिकेशन हो रहा है, जिसमें सिर्फ जो सेंडर है वो रिसीवर तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहता है, उसमें हम फीडबैक वापस अटेन या ऑब्टेन नहीं करते हैं। मतलब कि इफ यू आर वर्किंग, आप कहीं काम कर रहे हैं, तो जो आपके बॉस हैं वो एक ऑर्डर पास करते हैं कि जो टाइमिंग्स हैं वो कल से चेंज हो रही हैं, तो वो सिर्फ ऑफिशियली आपका जो भी ग्रुप होगा उसमें रिटन फॉर्मेट में एक ऑफिस लेटर हेड पे वो नया ऑर्डर पास कर देंगे। अब एज अ एम्प्लॉय या फिर उनसे सबॉर्डिनेट होने के कारण आप उस चीज में जब कोई फीडबैक नहीं दे पाते, तो उस टाइप के मैसेज को हम सिंगल चेन नेटवर्क में होने वाले फॉर्मल मैसेज के रूप में देखते हैं। जो नेक्स्ट है वो है आपका व्हील नेटवर्क। व्हील क्या होता है? व्हील होता है पहिया। उसमें सेंटर में एक हब टाइप होता है जिससे डिफरेंट जो पूरा व्हील है वो कनेक्टेड रहता है। तो यहाँ पे वो जो हब वाली पोजीशन है वो आपका बॉस या फिर सुपीरियर जो है वो ले लेगा इन अ फॉर्मल कम्युनिकेशन, और उसके जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं वो उस हब के अराउंड जो है वो सिचुएटेड रहते हैं। तो इसमें ये है कि जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे। कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है? बॉस सबऑर्डिनेट से कर रहा है, और जो सबऑर्डिनेट है दे आर डायरेक्टली वो इन्फॉर्म कर रहे हैं अपने सुपीरियर को। तो जो इस टाइप का कम्युनिकेशन होता है जिसमें द लेवल ऑफ कम्युनिकेशन इज ओनली बिटवीन द सबऑर्डिनेट्स एंड द सुपीरियर, उसको हम व्हील नेटवर्क कहते हैं। जबकि सर्कुलर में क्या होता है कि इसमें जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो बहुत स्लो होगा, वो इतना क्विक नहीं होगा, बिकॉज द इंफॉर्मेशन वो एक सर्कल की फॉर्म में मूव कर रही है। यानी कि अगर आप लोगों को याद होगा, एक बहुत पॉपुलर गेम होती है चाइनीज विस्पर, जिसमें यू सिट टुगेदर इन अ सर्कल। एक जो इंसान है वो एक मैसेज देना शुरू करता है, और फिर वो जो साथ वाला होता है वो अपने अगले पर्सन को वो मैसेज डिलीवर करता है। तो उसमें क्या हो रहा है, जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप अपने एडजेसेंट या अगले बैठे हुए व्यक्ति को वो सेम मैसेज एग्जैक्टली डिलीवर कर रहे हैं। जब वो इस तरह से एक सर्कुलर ऑर्डर में चल रहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के तरफ, तो वो एक सर्कुलर मैसेज है। और इन्वर्टेड भी होता है जब जो सबऑर्डिनेट है वो कम्युनिकेट करता है अपने सुपीरियर के साथ, तो करता ही है जो उसका इमीडिएट सीनियर है, पर साथ में वो अपने सुपीरियर के सुपीरियर या हेड के साथ भी कम्युनिकेट करने के लिए फ्री हो। तो इस टाइप के कम्युनिकेशन को हम इन्वर्टेड वी कम्युनिकेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें कि एक कंपनी की मीटिंग हो रही है, एक मीटिंग है सिर्फ बोर्ड मेंबर्स की, तो उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंपनी होंगे या डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, उनके हेड्स या जो बोर्ड मेंबर्स होंगे वही आके उस मीटिंग में कम्युनिकेट करेंगे अपने सीईओ के साथ। लेकिन अगर सीईओ एक ऑल टुगेदर ओपन सेशन ऑफ डिस्कशन या मीटिंग बुलाता है, तो जो एक नॉर्मल एम्प्लॉय भी है वो ना सिर्फ अपने सुपीरियर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, पर उस प्लेटफॉर्म पर आकर वो अपने कंपनी के सीईओ के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है। अगर एक और बेहतर एग्जांपल आप जानना चाहते हैं, तो वो है कि हम सब किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड होंगे। एक है कि हम डायरेक्टली अपनी दिक्कतों को बता रहे हैं अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन को। वहीं पे कभी कभी मौका दिया जाता है कि हम एज स्टूडेंट्स वाइस चांसलर के साथ भी ऑडिटोरियम में एक मीट या मीटिंग ऑर्गेनाइज करें। तो जब हम डायरेक्टली अपने चेयरपर्सन के साथ साथ अपने वाइस चांसलर के साथ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हम किस तरह के कम्युनिकेशन का प्रदर्शन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं इन्वर्टेड वी नेटवर्क फॉर्मल कम्युनिकेशन का प्रदर्शन। आई होप ये जो 4 नेटवर्क हैं ये आपको क्लियर है। अगर किसी को
इस पॉइंट पे इन 4 नेटवर्क में से किसी में भी दिक्कत है तो आप प्लीज अभी पूछ सकते हैं। अपना माइक अनम्यूट कर आप सवाल कर सकते हैं। जी, किसी ने हैंड रेज किया है? जी आशीर्वाद जी, you can unmute and ask your question. Thank you, ma'am, for giving me the opportunity to ask the question. Ma'am, I have the doubt in inverted V. Ma'am, because when we make the inverted V diagram, the subordinate comes on top and the boss and the boss's boss. The diagram is a bit confusing when it comes to inverted V. Can you please explain it again how it is inverted? Yeah. Why we actually name this communication inverted V? I think your understanding language is English, so I'll go on with English only. Whenever we talk about inverted V shape, then we have two edges at the bottom and the pointed part in the top. So what actually we want to show from this symbol is that the sender, which is a subordinate, he has an upper hand in communicating with two of his superiors. One, his immediate senior or superior, and the other one is boss. It doesn't have anything to do with their hierarchical rank, but it only shows the sender and receiver relationship. That's why from the sender, we just have one person communicating. So we are putting it on the pinnacle or the pointed side, and the receiver, at the receiver's end we have two receivers, one his immediate senior or superior and the other one is his superior's superior. That's why we take inverted V shape. It has nothing to do with their hierarchical rank, so kindly don't confuse the shape with their position or with their ranking. Okay. Okay, so it means basically that the communicator or the subordinate has equal, opportunity to communicate with either the boss or the boss's superior. That is why Yes, they are both at the same stable level. Okay, ma'am. Thank you. yes, Understood. you got Thank you it so much. right. Okay, welcome. So now we are moving forward. What are the advantages of the formal communication? That why हमें क्यों इतनी जरूरत है फॉर्मल कम्युनिकेशन की? तो इसके कई एडवांटेजेस हो सकते हैं। सबसे पहले तो इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ अथॉरिटी, क्योंकि फॉर्मल में हर चीज डॉक्यूमेंटेड होती है, तो जो अथॉरिटेटिव रोल पे होता है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस के थ्रू अपना जो मैसेज है, अपना जो ऑर्डर है, वो क्लियरली अपने जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं उन तक पहुंचा सकता है, और उसमें कंफ्यूजन का कोई भी जो स्कोप है वो नहीं रहता। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑर्डरली कैसा? कि जब भी कोई फॉर्मल मैसेज डिलीवर होता है तो उसमें हम पिक एंड चूज नहीं करते कि वी आर डिलीवरिंग इट टू वन पर्सन और हम दूसरे को छोड़ रहे हैं, नहीं। अगर जितने भी लोग एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, तो जब भी कोई फॉर्मल जो मैसेज है वो डिलीवर होता है एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए, यानी कि अगर वो, जैसे कि हम बोलते हैं कि वो क्लास 1 ऑफिसर है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, तो अगर कोई ऑर्डर क्लास 1 ऑफिसर्स रैंक के ऑफिसर्स के लिए निकलेगा तो वो हर ऑफिसर को जाएगा। उसमें ये स्कोप नहीं रहता कि आप किसी को, यू कैन लीव समबडी आउट। तो ये एक ऑर्डरली फ्लो होता है कि ठीक है, इट इज कमिंग, जो भी आपका सेंडर है तो वो रिसीवर तक बड़े ही ढंग से पहुंचेगा, एंड विदाउट कोई इस बीच में वो जो मैसेज है वो चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन द सेम। नेक्स्ट है सीक्रेसी भी रहती है। हाउ कम सीक्रेसी? क्योंकि हमने बात की कि ठीक है, इफ अगर किसी को कुछ बहुत ही कॉन्फिडेंशियल चीज किसी अपने सीनियर या अपने सबऑर्डिनेट तक पहुंचानी है, तो हम इसमें रिटर्न उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चैनल का। वी कैन राइट इट डाउन और उसको बिना किसी और को सूचित करे हम खुद डायरेक्टली उस पर्टिकुलर पर्सन जिससे वो कंसर्न कर रहा है वो पर्टिकुलर मैसेज, उससे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसका बहुत ही उम्दा जो एग्जाम्पल है वो है कि हम जब किसी इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं तो उसका रिजल्ट ऑब्वियसली उसी टाइम नहीं निकलता, इट टेक्स सम टाइम।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रिजल्ट गिवन टाइम से पहले डिस्क्लोज ना हो। तो क्या होता है, जितने भी अंदर आपके इंटरव्यूज होते हैं, जो इंटरव्यूज लेते हैं, तो वो जो एक्सपर्ट्स होते हैं टेक्निकली, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, एंड फिर वो एक बहुत ही ऑफिशियल या फॉर्मल ढंग से एक एनवेलप में डिसीजन जाकर इट इज पैक्ड और इट इज क्लोज्ड। फिर वो सही वक्त और सही प्लेटफॉर्म में जो है वो ओपन किया जाता है। तो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ फॉर्मल कम्युनिकेशन ओनली, क्योंकि जितने भी इंटरव्यू देने वाले आए हैं, फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स एंड या फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड, उनको उस रिजल्ट के थ्रू, चाहे वो वेबसाइट पे रिटन फॉर्म में आ रहा है या आपके प्रेस मीडिया में निकल रहा है, उनको सूचित किया जाता है कि यस दिस इज द रिजल्ट, एंड ये जो कैंडिडेट्स हैं वो इन हो गए हैं, एंड ये कैंडिडेट्स दे आर नॉट पार्ट ऑफ दैट इंस्टीट्यूट और दैट ऑर्गेनाइजेशन। फिर फोर्थ चीज है कि इसमें इजी नॉलेज ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो सबसे आसान तरीका होता है कोई भी इंफॉर्मेशन अटेन करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी वो ऑथेंटिक होगी। ऑथेंटिक इसलिए होगी क्योंकि हमने फर्स्ट स्लाइड में ही बात करी कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है उसका जो सोर्स या ओरिजिन होता है, कि वो इंफॉर्मेशन कहाँ से निकली है, वो क्लियरली मेंशन्ड होता है, ताकि भविष्य में कोई उस चीज को नकार ना सके। फॉर एग्जाम्पल, जब आप रिसर्च करेंगे आपके पास दो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रहेंगे। जब आप फॉर्मल की बात करेंगे तो जितना भी डेटा जो है वो आपको किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से मिल रहा है, या फिर कोई एक हाईली प्रोफाउंड यूनिवर्सिटी है जो उस चीज पर रिसर्च करवाती है, उसका कोई टेम्पोरल या टाइम सीरीज वाला डेटा है, तो वो आपका फॉर्मल डेटा होगा। फॉर्मल क्यों? क्योंकि जिस भी डिपार्टमेंट या जिस भी यूनिवर्सिटी का आप डेटा उठा रहे हैं वो उसके लेटर हेड के अंतर्गत आएगा, साथ में उसकी आपको वेबसाइट पे मिलेगा, और जो भी ऑफिसर उस डेटा के साथ डील कर रहा है उसके सिग्नेचर भी होते हैं कि हाँ दिस इज वेरीफाइड, कि ये ऑथेंटिक डेटा है। तो ये सबसे आसान सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि आप इसको अपने रिसर्च में इस्तेमाल करेंगे एंड कोई भी आपसे उसकी ऑथेंटिसिटी पे, उसके सही होने पे सवाल नहीं उठा सकता। और जब हम इनफॉर्मल की बात करते हैं तो इनफॉर्मल होता है कि ठीक है आप सर्वे पे निकल गए हैं और आप किसी से चलते चलते इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। द सर्वे इज ईदर ऑन कन्वीनियंस बेसिस, या फिर आपने कोई उसमें सैम्पलिंग टेक्निक लगी है। तो वो फॉर्मल क्यों नहीं है? बिकॉज आपने खुद लिया है। हाँ वो मान्य है, पर वो किसी डिपार्टमेंट ने अपनी निगरानी में नहीं करवाया है। ओके, एंड दिस इज अ वेरी इजी और सिंपल एग्जाम्पल जो मैंने आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए दिया है। फिर बात करते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से जो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन है उसके अगर एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। नंबर 1, देयर इज अ ओवरलोड ऑफ वर्क। ओवरलोड क्यों? क्योंकि आपको इतना कम्युनिकेशन को डॉक्यूमेंट करना है। अगर कोई मीटिंग भी हो रही है एंड वर्बली भी आप बोलकर भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो एक जो इंसान होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा उस मीटिंग के की पॉइंट्स भी पेन डाउन करने के लिए, या उस मीटिंग की प्रोसीडिंग्स को लिखने के लिए कि इस तारीख को ये मीटिंग हुई थी, ये एजेंडा डिस्कस किया गया और इस पर्टिकुलर इंसान ने ये कहा जिसके रिप्लाई में दिस वाज गिवन द आंसर। तो ये बहुत ही ज्यादा हैवी या टीडियस टास्क बन जाता है। दूसरा, डिस्टॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कभी कभी क्या होता है, जो सेंडर या रिसीवर होता है उसके बीच में डिस्टेंस इतना बड़ा होता है कि जो टाइम वो लेता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग किसी डिपार्टमेंट से कोई डेटा मांग रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट में कई स्कॉलर्स होते हैं, आरटीआई लगा रहे हैं, डेटा आ रहा है, लेकिन कभी कभी जो उसका रिप्लाई आपको आता है या आपको डेटा प्रोवाइड किया जाता है वो इतना डिलेड होता है कि तब तक वो पर्टिकुलर स्कॉलर कोई और सोर्स से डेटा का जो है वो
अरेंजमेंट कर चुका होता है, तो जब वो आपको पहुंचेगा शायद वो उस टाइम तक उतना यूजफुल ना हो, तो ये एक डिस्टॉर्शन टाइम की वजह से उसमें हो सकती है। और तीसरा, देयर इज नो पर्सनल टच। फॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा रिजिड होते हैं या फिर बहुत ही ज्यादा इमोशनल लेस होते हैं। आप उसमें एक्सेसिव इमोशन नहीं दिखा सकते, आपको किसी भी तरह का कोई पर्सनल टच नहीं फील होगा उसमें। उसमें सिर्फ जरूरत अनुसार उस मुद्दे पर जितनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए उतनी ही रहती है। अगला जो टाइप है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेस्ड कम्युनिकेशन का, वो है इनफॉर्मल, जो कि यानी कि अनौपचारिक। जैसे कि आप दोस्तों के बीच बात कर रहे हैं, वो एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। या फिर जो सेम लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं वो आपस में रैंडमली बात कर रहे हैं, वो भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। आप एक ही क्लास में हैं, सारे विद्यार्थी आपस में बात कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसकी खास बात है कि ये बहुत जल्दी स्प्रेड कर जाता है जंगल में लगी आग के समान। क्योंकि अगर मैं आपको इसका बहुत ही इजी एग्जांपल दूं, गॉसिप, किसी के बारे में कोई गॉसिप क्रिएट होती है वो बहुत जल्दी जाती है। वाई? क्योंकि वो इनफॉर्मल है। किसी ने मुझसे कुछ सुना, उसने उसमें अपनी एक दो बात ऐड करके आगे बोल दिया, द सेम द अदर पर्सन ऑल्सो डिड, क्योंकि वो ह्यूमन नेचर है। हाउ मच हम डिनाई करें कि वी डोंट गॉसिप, बट द थिंग इज दैट हाँ, हमारा लेवल ऑफ गॉसिपिंग अलग हो सकता है, लेकिन हम सबकी आदत है कि अगर हमें कोई बात पता होगी तो हम किसी ना किसी एक व्यक्ति को वो जरूर जाकर बताएंगे। इसमें आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन डिटेक्ट नहीं कर सकते। एक बार कोई इनफॉर्मल तरीके से बात फैल गई, आप नहीं पता लगा सकते कि वो कहाँ से वो बात निकली थी, किसने वो सबसे पहले की होगी। वाई? बिकॉज यहाँ पे क्रॉस कनेक्शनल कम्युनिकेशन होता है। हो सकता है मैंने पता नहीं किसी तीसरे से सुना होगा, आगे किसी चौथे को बता दिया, उस चौथे ने पता नहीं एक और इंसान को बता दिया। सो यू कैन नेवर एक्चुअली डिटेक्ट कि उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। अब जब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ही नहीं पता होगा तो आप उसकी ऑथेंटिसिटी पे 100% श्योर नहीं हो सकते। इसीलिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत बार रूमर्स भी फैलाता है, यानी कि और साथ में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। अब हो सकता है मुझ तक जो बात पहुंची मेरे बारे में, वैसी बात उस लहजे में कहीं ना गई हो जैसी वो मुझे रिसीव हुई। तो क्या हो रहा है? तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। हो सकता है मैं किसी को गलत सोचने लगूं जबकि उस व्यक्ति ने मेरे बारे में वो बात उस तरीके से कही ही ना हो। इसीलिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में करते हुए हमें अपने सेंसेस को बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। वी कैनॉट ट्रस्ट हर एक इंफॉर्मेशन जो इनफॉर्मल सोर्सेज या फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू हम तक पहुंची हो। इसका जो नेटवर्क होता है कम्युनिकेशन का इनफॉर्मल का, उसको हम ग्रेप वाइन नेटवर्क बोलते हैं। ग्रेप वाइन नेटवर्क को आप सब बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इस पर कई बार प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आ भी चुके हैं और पूरे चांसेस हैं कि आने वाले समय में भी वो इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछ सकते हैं। तो ये एक नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन होता है जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको ग्रेप वाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि अंगूर की बेल की तरह इसकी जो ब्रांचेस हैं वो पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन या एक लेवल पे जहाँ पे हम कम्युनिकेशन ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें फैली होती हैं। और एक जो व्यक्ति है वो हर एक डायरेक्शन में, चाहे वो उसका सुपीरियर हो, उसका सबऑर्डिनेट हो, उसका कंटेम्प्ररी हो या कलीग हो, सबसे इक्वली जो है वो कम्युनिकेट आपस में इनफॉर्मल तरीके से कर रहा है, यानी कि किसी भी तरह का प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो नहीं किया जा रहा। अब इसको करने के डिफरेंट जो टाइप्स या सब कैटेगरीज है। नंबर 1, सिंगल स्ट्रैंड। अब सिंगल स्ट्रैंड क्या होता है कि एक टाइम पे मैं सिर्फ एक ही व्यक्ति से बात कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी एक अपने कंटेम्प्ररी के साथ लंच करने जा रही हूँ, तो मैं उस टाइम उससे बात कर रही हूँ, ठीक है। फिर मैं लंच करके आई, फिर मुझे लगा कि ठीक है अब मुझे कुछ काम दिखाने जाना है अपने सुपरवाइजर को। अब सुपरवाइजर पूछते हैं कि ठीक है, सब ठीक चल रहा है कि नहीं।
आप हमेशा जाके फॉर्मल बात ही नहीं करते हो, कभी कभी यू ऑल्सो टेल कि ठीक है, हेल्थ वेल्थ सब ठीक है कि नहीं है, तो वो एक और कम्युनिकेशन हो गया। लेकिन उस टाइम आई एम जस्ट टॉकिंग टू माई सुपीरियर इन द फॉर्म ऑफ सुपरवाइजर, देन आई कम बैक। उसके बाद मुझे क्लरिकल डिपार्टमेंट से काम पड़ गया, फिर मैं वहां जाके बात कर रही हूँ। सो क्या हो रहा है, ये एक इनफॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग है जिसमें मुझे प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करना है, बट मैं डिफरेंट लेवल ऑफ पीपल से बात कर रही हूँ। लेकिन एक टाइम पे जब एक से बात कर रही हूँ तो इसको बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंड ग्रेप वाइन नेटवर्क। इसकी दूसरी कैटेगरी है गॉसिप। गॉसिप है कि ठीक है, इट डजेंट मैटर कि एक इंसान है कि दो इंसान है, किसी को कोई बात पता चली एंड उसने उसमें थोड़ा अपना इमेजिनेशन, अपना क्रिएटिविटी डालकर उसको एक ग्रुप के बीच में बोल दिया। फिर वो ग्रुप के लोग कहीं और जाके बात कर रहे हैं, फिर उनको याद आया, ओह हमने पिछले कॉन्वर्सेशन में ये सुना था, तो यहाँ पे भी बता देना चाहिए। तो उस तरह से एक गॉसिप है, वो भी क्रिएट होती है, तो उसको भी हम ग्रेप वाइन नेटवर्क की एक कैटेगरी के रूप में पढ़ते हैं। अगला है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी है कि ठीक है, आप किसी सेमिनार को लगाने चले गए और आप किसी को नहीं जानते। अब when you get time between the sessions, technical sessions, अब आप 2 दिन के लिए गए हैं, आप इंडिविजुअल नहीं घूम सकते हैं, यू नीड टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेट क्यों करना है? रिलेशन बिल्ड करने के लिए, दूसरी यूनिवर्सिटी से आए लोगों को जानने के लिए, ये जानने के लिए कि ठीक है उनकी यूनिवर्सिटी में किस लेवल की रिसर्च हो रही है, या फिर उस एक पर्टिकुलर व्यक्ति का टॉपिक क्या है। एक तो ये माइंडसेट होता है, दूसरा अब 2 दिन वहां पे रहना है एक अनजान जगह में, सो यू ऑल्सो नीड कंपनी। तो दोनों ही एम्स को साधने के लिए जब आप किसी भी पर्सन से जो आपको रूम में लगेगा कि ठीक है उसका जो एक विजुअल अपीयरेंस आ रहा है वो काफी कंफर्टेबल है, तो आप रैंडमली उससे बात करने जाओगे, खुद को इंट्रोड्यूस करोगे, उसे जानोगे, तो वो होगी आपकी प्रोबेबिलिटी ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन नेटवर्क। और जो इसका चौथा सब कैटेगरी है दैट इज क्लस्टर। क्लस्टर होता है कि आप कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के साथ ही इनफॉर्मली बात करना पसंद करते हो, जिन पे आप ट्रस्ट करते हो। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है कि हम स्कूल से लेकर अभी तक सुनते आ रहे हैं कि क्लास में ना बहुत ग्रुपिज्म चल रहा है, बहुत ग्रुप्स बन रहे हैं। तो वो ग्रुप बनना क्या होता है? वो ग्रुप क्लस्टर्स होते हैं। ग्रुप उनके बनते हैं जिनकी थिंकिंग एक जैसी हो। जब हम पर्टिकुलर 3-4 लोगों से बहुत कंफर्टेबल हो और उनके साथ काफी चीजें डिस्कस करते हो, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, तो जब हम क्लस्टर्स में बात करते हैं, ग्रुप्स में बात करते हैं इनफॉर्मल वे में, तो वो आपकी क्लस्टर ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन नेटवर्क की कैटेगरी में जो है वो आता है। अब एडवांटेजेस क्या होंगे इसके? सबसे पहला तो बहुत क्लियर है, स्पीडी होता है, बहुत जल्दी फैल जाता है। फिर फ्री एनवायरनमेंट होता है, क्योंकि हमें कोई प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करना होता, हमें ये ध्यान नहीं रखना होता कि हाँ हमें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, तो हम बहुत फ्रीली अपने विचारों को रखते हैं। सोशल रिलेशंस बनते हैं। जो लोग आपके एक्सट्रोवर्ट हैं उनका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया होता है। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बढ़िया होने का मतलब है कि आप नई जगह पर नए लोगों को काफी इजीली जान पाएंगे, नए सोशल रिलेशंस जो हैं वो बहुत अच्छे से बना पाएंगे। फिर सप्लीमेंटिंग कैसे? कि आपने अब डेटा तो ले लिया, सेंसस ऑफ इंडिया से डेटा उठा लिया, अब उसको आपको अपने स्टडी एरिया पर लगाना है। तो जो आप प्राइमरी सर्वे करोगे वो आपके सेंसस के डेटा को या तो स्ट्रांगली सपोर्ट करेगा या आपको उसमें बहुत सारे लूप होल्स देखने को मिलेंगे। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये एक सप्लीमेंट्री डेटा या इंफॉर्मेशन का एग्जाम्पल है कि जो आपको एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म से इंफॉर्मेशन मिल रही है वो कितनी हद तक सही है या कितनी हद तक उसमें खामियां है, वो भी हमें इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन से पता चलता है। इसके डिसएडवांटेजेस हैं कि इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, नोबडी, इसको कोई नहीं है वैलिडेट करने के लिए कि ये इंफॉर्मेशन सही है या गलत है। दूसरा, अनरिलायबल भी मानी जाती है। कभी कभी अगर आपके पास फॉर्मल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ना हो तो आपसे आपके डेटा को लेकर जो आपने खुद जाकर कलेक्ट किया है इनफॉर्मली,
उस पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं टू एक्चुअली नो कि उस पर कितना रिलाई कर सकते हैं आप, कितना उस पर विश्वास कर सकते हैं, कितना वो विश्वसनीय है, क्योंकि इनफॉर्मल सोर्स उतने विश्वसनीय नहीं माने गए हैं और लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन का खतरा भी इसमें रहता है। अब जो चीज आपके थ्रू गॉसिप के थ्रू आ रही है या रैंडम टॉक्स के थ्रू आ रही है तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप इनफॉर्मल ग्रुप में बैठकर अपना कोई सीक्रेट रिवील करेंगे तो उसकी पूरी गारंटी है कि वो देर सवेर चारों तरफ आपको फैलती हुई नजर आएगी। वाई? क्योंकि इसमें बहुत बड़ा खतरा रहता है कि ठीक है आपकी इंफॉर्मेशन लीक की जा सकती है। अब आ जाते हैं हम लास्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन, जो है बेस्ड ऑन डायरेक्शन। डायरेक्शन में हम बात करते हैं कि किस तरह से रिसीवर और सेंडर एंड पे कौन से व्यक्ति बैठे हैं, और जो हायरार्की की बात हमारे पिछले कुछ स्लाइड में आई थी इन्वर्टेड वी में, तो हायरार्की का ख्याल हम डायरेक्शन बेस्ड कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन में रखते हैं। इसमें या तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो सकता है, या तो अपवर्ड कम्युनिकेशन हो सकता है, हॉरिजॉन्टल जिसको हम लेटरल भी कहते हैं, या फिर डायगोनल। तो 5 मेन कैटेगरीज यहाँ पे वैसे 7 देखने को आई है। वो कैटेगरीज हमें 4 यहाँ कितनी दिखी है, 4 दिखी है यहाँ पे। और इसमें जो ये 4 कैटेगरीज हैं वो किस तरह से आपकी हायरार्की फॉलो करती हैं वो हम आने वाली स्लाइड्स में देखने वाले हैं। अब हायरार्की या फिर डायरेक्शन के बेस पे कम्युनिकेशन को कैटेगराइज करना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका मकसद ये होता है कि इससे हमें टास्क, फीडबैक और आइडियाज का जो फ्लो है या मूवमेंट है बिटवीन या विद इन हायरार्की वो पता चलता है कि किस तरह से काम हो रहा है, कितना एफिशिएंटली हो रहा है, या कल्चरल डिवीजन जो है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में या एक पर्टिकुलर सोसाइटी में वो किस तरह से है। जब हम बात करते हैं डायगोनल डाउनवर्ड की, तो डाउनवर्ड एज द वर्ड क्लियर्स कि वो ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो इंफॉर्मेशन या मैसेज वो फ्लो कर रहा है। अब इसमें क्योंकि हम हायरार्की की बात कर रहे हैं तो ऊपर से नीचे का मतलब है फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, यानी कि फ्रॉम बॉस लेवल टू द एम्प्लॉय लेवल, कि जब भी हमारे किसी सुपीरियर का मैसेज हम तक आता है बीइंग अ सबऑर्डिनेट तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में कोई क्या क्या कम्युनिकेट कर सकता है? या तो कोई ऑर्डर होगा, या तो कोई इंस्ट्रक्शंस आई होंगी, या फिर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अपकमिंग ईयर में क्या गोल्स हैं, क्या एम्स हैं वो सर्कुलेट हुए होंगे, कोई नई पॉलिसी आई होगी तो वो भी आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, या फिर ऊपर से नीचे तक आपकी परफॉर्मेंस फीडबैक आई होगी कि आपने पिछले साल या एक पर्टिकुलर इवेंट में आपका परफॉर्मेंस लेवल क्या रहा है। अब इसका पॉलिसी का एग्जांपल कि मान लीजिए स्टूडेंट्स के लिए कोई पॉलिसी बनी है, कोई फीस स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, तो वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से स्टूडेंट्स तक फ्लो डाउन करता है, तो वो एक एग्जांपल हुआ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का। फीडबैक क्या हो सकता है? फीडबैक होता है कि हमने रिसर्च कर ली, एक पेपर लिख दिया और फिर वो पेपर जो है वो कहीं सबमिट किया किसी एडिटर को। अब वो जो एडिटर है जब वो हमारे पेपर को पढ़ने के बाद उस पे अपना रिव्यू या अपना रिप्लाई देते हैं, दैट इज योर डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन है कि जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो लोअर लेवल से एक्सक्यूज मी हायर लेवल पे हो रहा है, जिसमें फीडबैक मांगा जा सकता है, जैसे कि आप लोग मेरा फीडबैक देंगे कल ऑर्गेनाइजर्स को कि हाउ आपको कैसा लगा कि 3 दिन का लेक्चर कैसा है, वो एक अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया। या आप सजेशंस भी लिखेंगे उसमें कि ये खामियां थी स्पीकर पे जिस पे वो काम कर सकती हैं और फ्यूचर के लिए इम्प्रूव कर सकती हैं। कोई रिपोर्ट्स सबमिट करते हैं आप, दैट इज ऑल्सो अपवर्ड, क्योंकि आपको आपके सीनियर ने बोला एक इवेंट पे रिपोर्ट बनाइए, तो आप वो रिपोर्ट बना के किसको सबमिट कर रहे हो? रिपोर्ट हमेशा आपके सुपीरियर को सबमिट होती है, वो कभी आप
नीचे अपने सबॉर्डिनेट्स को नहीं देंगे. सो वेन एवर यू आर रिपोर्टिंग समथिंग दैट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन. या फिर आप कंसर्न शो कर रहे हो, आपको कोई दिक्कत है, आप अपनी दिक्कत किसी को, अपने सीनियर को, अपने बॉस को बता रहे हैं, इवन दैट कम्स इन योर अपवर्ड कम्युनिकेशन. फिर आ जाता है हॉरिजॉन्टल, जिसको हम लेटरल भी बोलते हैं कम्युनिकेशन. ये होता है जब आप कंटेम्प्रेरीज यानी कि जो आपके इक्वल हैं, आपका पीयर ग्रुप है, आपके सेम डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं. या फिर सेम लेवल कि जो आप फॉर एग्जांपल जितने भी मास्टर के स्टूडेंट्स हैं, वो अगर किसी भी डिपार्टमेंट के मास्टर के स्टूडेंट के साथ बात कर रहा है, यहाँ पे हम सिमिलैरिटी ले रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. तो आप लोगों के बीच जितना भी कम्युनिकेशन होगा वो कैसा होगा, वो एक हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगा. इस टाइप का कम्युनिकेशन बेसिकली होता है कोऑर्डिनेशन दिखाने के लिए. जब आप एक टीम में काम कर रहे होते हैं तो टीम मेंबर्स के बीच में भी टीम लीडर को छोड़कर सारा जो कम्युनिकेशन है वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है. प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है ये. क्यों? जब आप लोग साथ में किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, यू कम्युनिकेट, एवरीवन इज इक्वल. तो जो आपने प्रॉब्लम ली होती है या कोई डिफिकल्टी उस प्रोजेक्ट को करने में आई होती है, तो आप आपस में बात कर कर उसका सोल्यूशन डिराइव करते हैं. फिर आ जाता है डायगोनल कम्युनिकेशन. डायगोनल का मतलब है कि जो डिफरेंट लेवल के लोग हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं ताकि फास्टर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाए और एक फॉर्मल चेन हमें ना फॉलो करनी पड़े. इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए एक आपके इंस्टीट्यूट में, क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं तो इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. तो आप मान लीजिए कि मतलब एक यूनिवर्सिटी है, उसमें कोई एक डिपार्टमेंट है और उस डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं वो रेगुलरली शो नहीं कर रहे, वो रेगुलरली अटेंड नहीं कर रहे अपनी क्लासेस, या इस टाइप की कुछ इरेगुलरिटी देखने को मिलती है. अब ठीक है, ये इंफॉर्मेशन गई टू द हेड चेयरपर्सन ऑफ द डिपार्टमेंट, या फिर अगर चेयरपर्सन से भी ऊपर जाना है, डीन ऑफ स्टडीज को चली गई कि ठीक है ये डिपार्टमेंट है, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो आ ही नहीं रहे. तो डीन एक चीज कर सकता है, या तो वो फॉर्मल चेन मेंटेन करे, वो बात करेगा चेयरपर्सन से, फिर चेयरपर्सन फर्दर पूछेंगे सब्जेक्ट टीचर से कि हाँ जी क्या दिक्कत है, और फिर वो सिमिलर ट्रैक फॉलो करते हुए पहले टीचर्स चेयरपर्सन को बताएंगे, चेयरपर्सन डीन को बताएंगे कि हाँ जी ये दिक्कत है. या तो व्हाट कैन द डीन डू कि वो ये सारी चेन को तोड़ते हुए अगर डायरेक्टली एक कम्युनिकेशन सेशन लगाएं स्टूडेंट्स के साथ और उनसे डायरेक्टली पूछें कि हाँ जी व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है कि यू आर नॉट रेगुलर. तो जब हम इस तरह से एक फॉर्मल चेन को तोड़ते हुए दो डिफरेंट लेवल डायरेक्टली आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन. और इस कैटेगरी में जो लास्ट सब टाइप है वो है आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन. वर्टिकल एक ऐसा ब्रॉड या फिर अम्ब्रेला टर्म है जिसमें आप डाउनवर्ड और अपवर्ड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन दोनों को एक साथ स्टडी करते हैं या आपको एक साथ देखने को मिलती है. यानी कि जैसे कि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं कि आपने एक पेपर पब्लिश होने के लिए पहले आपने सबमिट करा किसी जर्नल के पब्लिशर या एडिटर को, पब्लिशर को नहीं एडिटर को. अब वो एक अपवर्ड कम्युनिकेशन था क्योंकि आप सबऑर्डिनेट हो, एडिटर सुपीरियर है, आपने उसको कम्युनिकेट किया. फिर वो एडिटर ने आपका पेपर अगर एक्सेप्ट किया तो वो एक्सेप्टेंस मेल और इम्प्रूवमेंट आपके साथ कम्युनिकेट किए, वो हो गया डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. अब दोबारा आपने वो चीज अपने आर्टिकल को इम्प्रूव कर कर एडिटर को रिकम्युनिकेट किया कहते हुए कि यू हैव डेल्ट विद ऑल द प्रॉब्लम्स. तो जब आप एक अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन दोनों साथ में हो रहा है तो उस टाइप के कम्युनिकेशन पैटर्न को हम बोलेंगे वर्टिकल कम्युनिकेशन. ओके, अब ये थी हमारी सारी कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन. जो भी डाउट है वो हम थोड़ा बाद में लेंगे.
एंड ऑफ द लेक्चर में। अभी हम फटाफट बात करते हैं कि जो आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो क्या होती है। जब भी हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हम एक ऐसी कम्युनिकेशन चाहते हैं जिसमें सेंडर जो है वो बहुत अच्छे से अपनी बातों को रिसीवर तक पहुंचा सके, यानी कि एक टाइप की क्लियर टॉक जब हो तो उसे हम कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जिसमें योर सी कैन स्टैंड फॉर क्लैरिटी, कि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जिस पे आप लोग बात कर रहे हैं उस पे एक कंप्लीट क्लैरिटी है। आपके जो आइडियाज हैं, आपके जो थॉट्स हैं वो बिल्कुल भी भ्रमित करने वाले नहीं हैं। यू आर क्लियर अबाउट व्हाट यू आर टॉकिंग। एल स्टैंड फॉर लिसनिंग। अगर आप बोल रहे हैं तो आप उतने ही पेशेंटली सुनने के लिए भी तैयार हो, इवन दैट इज अ साइन ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि जब तक आप अपनी कही हुई बातों पे दूसरों को सुनेंगे नहीं, आप एनालाइज ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सी बात सामने वाले ने एक्सेप्ट की है, कौन सी बात उनको पसंद नहीं आई है, जो आपको फ्यूचर में करने से बचना चाहिए। E इज एम्पैथी। एम्पैथी होता है कि ठीक है, आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं दो लोग एंड आप सामने वाले की बात को सुनकर जब खुद को उसकी सिचुएशन में देखकर एनालाइज करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं उसको समझने की, तो उसे एम्पैथी कहा जाता है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में एम्पैथी भी होनी चाहिए। ए इज अटेंशन। ऑब्वियसली हमें बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है अगर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप चाहते हैं बिल्ड हो, क्योंकि अगर कोई बोल रहा है एंड आप सुन नहीं रहे, वो बोल रहा है आप फोन चला रहे हैं, दैट इज नॉट एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फिर वो इंसान आपसे बात करने में कोई खास उत्सुक नहीं रहेगा। आर इज रिस्पॉन्स। आपको रिस्पॉन्सिव भी होना है, क्योंकि रिस्पॉन्स के थ्रू या फीडबैक के थ्रू ही जो आपका सेंडर है उसे पता चलता है कि यस, आपने उसकी बात को सुना, समझा और उस पर प्रतिक्रिया आप दे रहे हैं। टाइमिंग शुड बी वेरी क्लियर। आप गलत समय पे गलत बात या गलत टॉपिक नहीं निकाल सकते, अदरवाइज गलत समय पे की गई सही बात भी गलत ही समझी जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से समय पे कौन सी बात जो है वो करनी है। देन ए इज योर एक्यूरेसी, कि आप कितनी सटीक और कितना पॉइंट टू पॉइंट बोल रहे हैं। योर एल इज फॉर लैंग्वेज एंड कि आपकी भाषा पर बहुत अच्छा कंट्रोल होना चाहिए, कि अगर आपको देखना है कि जो ऑडियंस है, जो सुनने वाले हैं, जो रिसीवर एंड पे हैं, वो कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं और उस लैंग्वेज पे आपके पास इतने स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी, इतनी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स होने चाहिए कि आप अपनी बात उन तक पहुंचा सके। एंड के इज नॉलेज। विदाउट नॉलेज देयर इज नथिंग। अगर आपको उस चीज का ज्ञान ही नहीं होगा तो आप आगे क्या सर्कुलेट करेंगे। अब जो ये वाली स्लाइड है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है उसको बता रही है। तो 7 C's चाहिए होते हैं। C's मतलब 7 क्वालिटीज फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वो है कॉन्क्रीट, कि आपके पास लॉजिक होने चाहिए उस एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, आपके पास एविडेंस होने चाहिए। इट शुड बी कोहेरेंट। मैं इमेज से देख के पढ़ा रही हूँ। कोहेरेंट का मतलब होता है कि आपकी एक बात दूसरी बात के साथ कनेक्टेड फील होनी चाहिए। आप गैप्स में बात नहीं कर सकते हैं कि आपने 2 मिनट पहले जो बात बोली उससे अभी वाली बात से कोई रिलेशन ही नहीं है। तो आपको एक प्रॉपर इंटर रिलेशन डेवलप करना है एक टॉपिक पे जो आप जिस पे कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर एक लेवल ऑफ कमिटमेंट भी दिखना चाहिए आपके रिसीवर्स को। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठीक है, एक दिन तो आपने इतनी अच्छे से कम्युनिकेट कर दिया कि पीपल आर ऑन 7th क्लाउड, वो आपसे इम्प्रेस हो गए हैं, और अगले दिन आप अपने पिछले दिन के स्तर से नीचे आ गए। आपको या तो एक लेवल मेंटेन रखना है या फिर अपवर्ड ग्राफ दिखाना चाहिए अपने कम्युनिकेशन में, कि जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पहले थे उनसे या तो आप बेहतर हो, तब वो फायदेमंद है, या कम से कम जो आपके पास्ट में कम्युनिकेशन स्किल है उन्हें तो आप मेंटेन रखें ही। कंप्लीटनेस होनी चाहिए आपकी बातों में। अधूरी
या अधूरी बात या अधूरा ज्ञान दोनों ही जीवन के लिए हानिकारक हैं। तो अगर आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अपने विचारों में, अपने शब्दों में एक कंप्लीटनेस लाएं। कर्टियस होना चाहिए। कर्टियस का मतलब है कि आपको बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट टोन में, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ, बहुत प्यार से अपनी चीजों को कम्युनिकेट करना चाहिए। आपको सामने वाले को डराना नहीं है, उसे इंसल्टेड भी नहीं फील कराना है। तो आप में बहुत संयम होना चाहिए कि आप बहुत रिस्पेक्ट से, बहुत शालीनता से अपना जो पॉइंट है वो सामने रखें। कुछ स्किल्स होती हैं जो आपके कम्युनिकेशन को बहुत इफेक्टिव बनाती हैं, जैसे कि आई कांटेक्ट। आपको कोशिश करनी चाहिए, अगर आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है, कि आप सामने वाले से एक बहुत ही सॉफ्ट आई कांटेक्ट मेंटेन करें। जब मैं कह रही हूँ सॉफ्ट आई कांटेक्ट, इट मीन्स कि आपको उसको घूरना भी नहीं है, बट हाँ, आपको इधर उधर या नीचे देखते हुए भी बात नहीं करनी है। आपको बड़ी ही शालीनता के साथ सामने वाले व्यक्ति को देखते हुए अपना पॉइंट रखना है। दूसरा है पॉजिटिव लैंग्वेज। आप कोशिश कीजिए आप किसी भी तरह के इल वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें। और जो आपका स्टाइल है, कई लोग अच्छा दिखाने के चक्कर में बहुत ज्यादा अपने एक्सेंट को चेंज करते हैं, तो हमें वो चीज भी अवॉइड करनी चाहिए। हमें एक नेचुरल स्टाइल के साथ, या नेचुरल जो हमारा फ्लो है, नेचुरल फ्लुएंसी है, उसके साथ ही अपनी जो बात है वो आगे रखनी चाहिए। और एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, अगर हम श्रोता हैं, अब ये नहीं है कि सेंडर एंड से ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकता है, जो रिसीविंग एंड में है वो भी अगर एंड ऑफ द डिस्कशन एक बहुत कंस्ट्रक्टिव या ऑनेस्ट फीडबैक दें, तो वो भी एक कम्युनिकेशन प्रोसेस को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना सकता है। आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है बैरियर्स या अवरोध क्या हो सकते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। क्योंकि एज ए ह्यूमन आप चाहेंगे, मैं भी चाहती हूँ कि कम्युनिकेशन हमेशा इफेक्टिव रहे। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपनी बातों को सामने वाले तक पहुंचा पाए, लेकिन स्टिल कुछ बैरियर्स आ जाते हैं, कुछ अवरोध आ जाते हैं, जिससे कम्युनिकेशन में थोड़ा बहुत तालमेल नहीं बन पाता और वो उतने अच्छे से सामने वाले तक बात नहीं पहुंच पाती। तो वो बैरियर्स क्या है? जो पहला बैरियर है दैट इज सीमेंटिक बैरियर, जिसका मतलब होता है शाब्दिक बाधाएं। हो सकता है जिन शब्दों का चयन मैं कर रही हूँ, कुछ लोगों को उन शब्दों का मतलब ना पता हो, और ऐसा तब होता है जब हम डिफरेंट लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं, हम किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के साथ उतने फेमिलियर नहीं है, तो ये भी एक बाधा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं केरला गई थी घूमने, तो वहां पे हमें थोड़ा डाउट हो रहा था कि ठीक है वो क्या बोलना चाह रहे हैं, जबकि क्यों? क्योंकि जो उनकी भाषा है हम उससे एकदम अनजान थे, एंड जो हमें भाषा आ रही थी, कभी कभी जो शब्द हम बोल रहे थे वो उनके लिए उतने क्लियर नहीं थे। या फिर कभी कभी अंग्रेज यहाँ या कोई भी किसी फॉरेन कंट्री से, लाइक नॉर्वे वगैरह से लोग आते हैं, तो दे ट्राई टू आस्क यू समथिंग, सम डायरेक्शंस। आप अपने लेवल पे पूरी ट्राई करोगे कि आप उनको सही डायरेक्शन बताओ, बट मे बी जो हम जिस तरह से वो शब्द बोल रहे हैं वो उस शब्द को उस तरह से बोलते ही ना हो। या फिर जो आपकी कंट्रीज है नॉर्वे, उसमें इंग्लिश बोली जाती है बट वो उनकी एक मदर लैंग्वेज या मदर टंग नहीं है। तो हो सकता है जिस शब्द का, अंग्रेजी के शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उसका इस्तेमाल उतना रैंडमली करते ही ना हो, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो रिलेट ही ना कर पा रहे हो कि आप उनको बोलना क्या चाहते हैं। तो इस तरह के जो शाब्दिक आपके अवरोध या बाधाएं होती हैं उनको हम सीमेंटिक बैरियर्स बोलते हैं। अगला है साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक। फिर उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल और संगठनात्मक बाधाएं। फिर कल्चरल और सांस्कृतिक बाधाएं, फिजिकल या फिर भौतिक बाधाएं, और लास्ट है फिजियोलॉजिकल या फिर शारीरिक जो आपकी बाधाएं रहती हैं। अब इसमें अगर बात करें, साइकोलॉजिकल का मतलब है कि हो सकता है जो सेंडर की सोच है वो रिसीवर की सोच के साथ उतनी मेल नहीं खा रही है। तो अगर मैं कोई पॉइंट बोलूंगी और सामने वाला उस वाली मेंटालिटी
से सोचता ही ना हो, तो वहां पे मैं उसको अपना मैसेज उतने अच्छे से डिलीवर ही नहीं कर पाऊंगी। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है जब हमारे माता पिता हमें कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंस से समझा रहे होते हैं, वो उस स्टेज से निकल चुके हैं, तो वो साइकोलॉजिकली हमसे ज्यादा एडवांस्ड है। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे बीच में अनबन हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम उनकी तरह नहीं सोच सकते, हमारी साइकोलॉजी डिफरेंट है। तो वहां पे कम्युनिकेशन में अवरोध क्या बन रहा है? हमारी डिफरेंट मनोविज्ञान होना, हमारी डिफरेंट साइकोलॉजी होना, डिफरेंट मानसिकता होना। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स होता है कि कुछ रूल्स या स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं प्रेजेंटली ऑर्गेनाइजेशन में, जिसकी वजह से हम उतना खुलकर बात नहीं कर पाते। यानी कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल यूज करती है, वो कह रही है कि ठीक है, इस वाले डिपार्टमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो साथ वाले डिपार्टमेंट के साथ नहीं होना चाहिए, तो वहां पे वो अपने एम्प्लॉयज को फोर्स कर रहे हैं कि वो अपना कम्युनिकेशन थोड़ा लिमिटेड रखें, ताकि अगर कोई सीक्रेसी है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की, वो दूसरे डिपार्टमेंट पे ना जाए। तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स भी हो सकते हैं। या फिर कोई दो दोस्त हैं, वो डिफरेंट कंपनीज में काम करते हैं और वो कंपनीज राइवल्स हैं, तो कभी कभी किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हुए वो भी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स निकाल देते हैं कि जब तक ये प्रोजेक्ट का टेंडर नहीं खुलता, यू वोंट बी कम्युनिकेटिंग विद द अदर पीपल, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे कौन से सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रिलीज हो जाए। सो दैट इज योर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। उसके बाद आता है कल्चरल बैरियर। कल्चर का साफ है कि हमारी या तो भाषा अलग है या हमारा कल्चर अलग है। जैसे कि अगर आप देखेंगे जो हमारे पंजाब हरियाणा के लोग होते हैं, ये बहुत जॉली होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, तो इनका जो टोन रहता है वो काफी एक लाउड टोन रहता है, और क्योंकि वो इनकी अंदर की एनर्जी या हैप्पीनेस को दर्शाने के काम आता है। अब अगर आप जैसे ये उत्तराखंड, हिमाचल या जम्मू जैसी स्टेट है जहाँ पे लोग थोड़ा आहिस्ता बोलते हैं, ठंडे इलाके के होने की वजह से हमारी टोन भी शांत रहती है, तो अगर कभी कभी दो अनजान लोग इन दो डिफरेंट स्टेट से बात करें, तो कभी कभी सामने वाले आपको बूस्ट करने के लिए भी जोर से बात कर रहा हो सकता है, लेकिन हमें क्या लगेगा? हमें लगेगा हाय कितनी जोर से बोल दिया। तो ये क्या है? ये कल्चरल बैरियर है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली हमारा कल्चर, हमारा जो रहन सहन का तरीका है वो अलग है। एक फैमिली में भी ये चीज हो सकती है कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उन्हें बहुत एकदम ऊंचा सुनाई देता है, तो अब जब लोगों को ऊंचा सुनता है तो वो बोलते भी ऊंचा है, बिकॉज फिर हम ये अज्यूम करने लगते हैं कि सामने वाला उसी फ्रीक्वेंसी से सुनेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि वो बहुत नॉर्मली अच्छी चीज आपको बोल रहे होंगे, लेकिन आप एकदम से शॉक में चले जाते हैं कि इन्होंने इतनी जोर से क्यों बोल दिया, क्या ये हमें गुस्सा करना चाह रहे थे? सो even that comes in your barrier. Obviously it is not a cultural barrier, it is a age related barrier, but it is a barrier. Then your physical barrier. Physical का मतलब दरवाजा बंद है, आपको सुनाई नहीं दे रहा, इसलिए सामने वाले कमरे से क्या बात आ रही है। या फिर आप किचन में हैं, वहां पे एग्जॉस्ट फैन चल रहा है, तो आपको बाहर से कोई किचन में क्या बोल रहा है उसकी क्लैरिटी नहीं रहती। तो इस तरह के जो बैरियर्स होते हैं उनको फिजिकल बैरियर्स बोलते हैं। और फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होता है कि आपको कोई सुनने में प्रॉब्लम है, कईयों को बाई बर्थ होती है, या कईयों को कभी कभी कुछ इन्फेक्शन हो जाता है कान में, आपको क्लियरली नहीं सुन पा रहा। इवन दैट इज अ बैरियर, क्योंकि जब तक आप चीजों को क्लियरली सुनेंगे नहीं, आप बोलेंगे कैसे? कभी कभी हमारा थ्रोट जो होता है वो स्वेल कर जाता है and the voice doesn't come out to be clear. Even that's a physiological barrier. कभी कभी cold की वजह से our voice changes and it is not clear. Either it is shrill या फिर बहुत दबी दबी आवाज आती है, तो वो भी एक एग्जाम्पल है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स का। तो आज के लिए हमने जस्ट बैरियर्स डिस्कस करने थे, जिनमें हमने 6 कैटेगरीज ऑफ बैरियर्स जो है वो डिस्कस किए। नाउ आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू, अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो प्लीज यू आर वेरी मच फ्री कि आप या तो टेक्स्ट बॉक्स में लिख लीजिए या खुद को अनम्यूट कर कर आप पूछ सकते हैं। Thank you, Any Janvi question ji, from for whatever we have studied today? thank you so much, Janvi ji, for treasured and illuminating deliberation on paper one's communication unit.
And I hope this session substantially improved clarity and understanding among aspirants about various topics on and around communication unit. And I request audience, if they have any question, they can post it on the chat box and you may raise your hand. We will enable your mic. You are free to ask any question, query. ओके, इफ देयर आर नो क्वेश्चंस तो फिर मैं एक अनाउंसमेंट करूंगी कि कल एज ऑलरेडी टोल्ड आपको एक तो पीपीटी पूरी की पूरी प्रोवाइड कर दी जाएगी ऑफ दीज 3 days लेक्चर जो मैं कंडक्ट करूंगी, और दूसरा यू विल बी प्रोवाइडेड विद अ पीडीएफ दैट कंप्राइजेस ऑफ योर एमसीक्यू क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में कम्युनिकेशन से पूछे गए थे या जिनका चांस है कि वो पूछे जा सकते हैं। तो वो आपको कल के लेक्चर के बाद चैट बॉक्स में प्रोवाइड करवा दी जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट द स्टडी मटेरियल। Ashirwad ji, do you have any question? Krishna ji, can you please unmute, enable his mic, Ashirwad Bharti's mic? ओके, सो भारती जी का एक क्वेश्चन है कि आप फिजियोलॉजिकल बैरियर्स जो हैं वो क्या दोबारा से समझा सकते हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स का अगर हम हिंदी में अर्थ देखें तो मतलब शारीरिक बाधाएं, यानी कि ईदर आपको दिक्कत है कि आप क्लियरली अपने शब्द उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बोल नहीं पा रहे हैं, या तो आप जो आपसे कहा जा रहा है उसको क्लियरली सुन नहीं पा रहे हैं क्योंकि देयर इज सम काइंड ऑफ इशू, चाहे वो डिजीज की वजह से हो या इनबॉर्न हो आपके सुनने में। तो जब भी हमारी सुनने या बोलने की जो स्थिति है वो बाधित रहती है, इट इज इंटरप्टेड ईदर बाय अ डिजीज और एलिमेंट या इट इज इनबॉर्न, तो हम उसको फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में कंसिडर कर सकते हैं। अब ये तो रहा ओरल या वर्बल वाले कम्युनिकेशन की बात। अगर हम रिटन कम्युनिकेशन में फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की बात करें, इमेजिन यू आर अ राइटी, यू आर मतलब यू राइट विद योर राइट हैंड और आपने वो हाथ फ्रैक्चर कर दिया है। अब एग्जाम लिखना है, इवन दैट इज पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन, आप लिख नहीं पा रहे हैं एंड इट इज जस्ट नॉर्मल हाउस एग्जाम, सो आप उसको नहीं लिख पाते, तो आप क्या कर रहे हो वहां पे भी तो देयर इज अ फिजियोलॉजिकल बैरियर, एक फिजिकल स्टेट है आपकी बॉडी की जिसकी वजह से आप अपनी जो थॉट है ऑफ द पर्टिकुलर एग्जाम्स उसको शेयर नहीं कर पा रहे हो विद योर टीचर। सो कोई भी शारीरिक रूप से कोई एलिमेंट हो जाए जिससे आप खुद को या अपने विचारों को कम्युनिकेट ना कर पाओ या दूसरों के विचारों को समझ ना पाओ, तो वो सारे बैरियर्स जो हैं वो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के रूप में देखे जाते हैं। Ma'am, thank you for the explanation, ma'am. Ma'am, I have two questions. First Yes, is that please. you just talked about physiological barrier in written communication. So I was asking if we can quote the Braille vis-a-vis alphabet, the normal alphabet writing as a good example of physiological barrier, because normal people might not be able to read Braille while the people who are blind are not able to read the normal newspaper or like normal alphabet. So will that be a good example of written communication physiological barrier? Yes, that would be an excellent example because obviously your point is correct that normal people like us, we can't understand the Braille script, and people who are good in Braille, they don't understand what is normally written in the alphabetical language. So your example regarding barrier in written communication is very much correct when you're talking about Braille versus your alphabetical pattern of writing. Ma'am, my second question is that I have when I was listening to your lecture, I am also writing about some like the recent trend. Like there is a recent trend where our children, they are not able to focus properly. They are multitasking. So
what kind of multitasking a kind of barrier in communication? For example, while I am listening to your lecture, I might be playing a music in the background, or I might also be like exploring YouTube side by side. So what kind of barrier can we call this? Will this be a psychological barrier, or it will be a physical barrier? Because in the end, the sounds of both are mixing, and neither of the messages are being able to be communicated properly. Okay, so when you're talking about multitasking thing, if the multitasking just comprises of that you are having some kind of competition tomorrow and you are thinking about it, right? Like you are physically present over here but mentally you are somewhere else, then that would be categorized as psychological barrier. But if you're talking like you are doing something, like you are making a ppt sideways, or you're creating some kind of practical file, or you're also listening to this session plus cooking, then that would be a physical barrier. Why? Because there some physical entity is involved in actually distracting your concentration from this communication or from what I am actually trying to deliver. All right, ma'am. Thank you so much. Okay, and अरविंद जी ने एक डिजीज का नाम लिखा है, dyslexia. So yes, that is also a physiological barrier, क्योंकि उसमें our nervous system is not that good in actually coordinating with the spellings or with the words. So yes, even that is a barrier, and that is included in your फिजियोलॉजिकल बैरियर, क्योंकि वो जो इनएफिशिएंसी है वो आपकी ब्रेन की वजह से है या आपके न्यूरल सिस्टम की वजह से है. So I think there are no more questions about today's session. Okay, there is one more. What is the difference between cultural and cultural? Okay, I didn't mention any kind of language barrier. First thing, मैंने language barrier का example cultural barrier में ही इस्तेमाल किया, because whenever we use the term culture, then it includes your religious thinking, your language, your food habits, and everything that is related to your social life altogether. So there is no difference between cultural or language barrier. Your language barrier is a subcategory of cultural barrier only. And the first barrier that I have mentioned was semantic या शाब्दिक. And it is not language, it is actually the words that we are using. Either it could mean different things at different places, or their intensity of taking that particular word could be different. तो या तो आप लैंग्वेज बैरियर मत बोलिए, कॉल इट सिमेंटिक बैरियर, या अगर आप सिर्फ भाषा की बात कर रहे हैं तो आप उसको कल्चरल बैरियर में इंक्लूड करेंगे. ओके, या सो यू वर टॉकिंग अबाउट सिमेंटिक ओनली. तो इनका अगर मैं एक रॉ एग्जाम्पल आपको दूंगी, वो ये है कि अगर हम कुछ, इट डिपेंड्स फ्रॉम वेयर वी एक्चुअली, हम कहाँ या कैसी स्थितियों में रह रहे होते हैं. अब अगर आप देखेंगे कुछ के फैमिली स्ट्रक्चर में छोटी से छोटी जो गाली है उसको नहीं दिया जाता है, वो काफी ऑफेंसिव मानी जाती है. बट अगर आप विलेज लेवल पे चले जाएंगे तो वहां पे कुछ एक वर्ड्स ऐसे होंगे जो वो डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं और वो उनको यूज करके ऑफेंड नहीं होंगे. तो क्या है, एक शब्द है, एक पर्टिकुलर शब्द है जो कुछ लोगों के लिए ऑफेंसिव हो सकता है लेकिन कुछ के लिए वो हार्मलेस है. तो जब शाब्दिक तौर पर बैरियर आता है कि एक जगह उसका अर्थ ठीक लिया जाता है और दूसरी तरफ उसके अर्थ का अनर्थ हो जाए, सो वो होता है आपका सिमेंटिक या फिर शाब्दिक बैरियर. जबकि जो आपका है ये कल्चरल बैरियर, इसमें ये है कि ठीक है, वी स्पीक ऑल टुगेदर डिफरेंट लैंग्वेजेस, एंड व्हेन वी आर एक्चुअली टॉकिंग डिफरेंट लैंग्वेज, तो हो सकता है कि हम अपने कल्चर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं एंड वो उस तरह से एक अवरोध हो रहा है कि ठीक है, मेरे को फ्रेंच बोलनी नहीं आती है, फ्रेंच वाले को हिंदी या इंग्लिश बोलनी नहीं आती. So I hope that is the difference between the two barriers.
हाँ जी, आशीर्वाद जी पूछिए। Ma'am, sorry for like I have it is like my first time joining this, and I am having so many questions because your lecture has been very informative. And while I am like writing all the stuff, there are some points coming which I need clarification on. I am very sorry if it No, is no taking too much. problem for apology. You can go ahead with your Yes, ma'am. doubts. Ma'am, so while I went through my notes once again while you were describing about the culture and the semantic barrier. Ma'am, will social media communication be how can we classify a social media communication? Because we know that there are both authoritative figures as well as people who are talking there in their own personal capacity as well. So will it be a formal communication, will it be informal communication? Because both personal and non-personal kind of information is being flowing through that channel. And can we depend upon social media as an authentic source of information when we go for research or like for any such purposes which requires authentic information? Okay. If you're talking about research, then I would kindly request you kindly don't rely on the data provided by social media, firstly. Secondly, if the social media platform are operated by government agencies, because even your UGC has a X Yes, account, yes, mainly Twitter. Yes. even your Twitter has been changed to X, so that's why I'm using the term X. Even your all the government departments nowadays, they all are active on social media platform. If those particular accounts are actually completely organized and foreseen by those government authorities, and you will see whenever they are sharing some kind of information, either they are using the letterhead of the department, or they are putting in the sign of the chairperson or head of that particular department. If those things are there, then you consider them as formal source of information, and you can utilize them either for your research or even for any other academic purposes. But if we go by like social media platform of some influencer, kindly, that is completely informal, because nobody is there to actually validate whatever they are sharing. So don't rely on it. So social media comprises of your both formal as well as informal information. It only depends that who are the personalities or departments that are actually sharing it. For example, if our prime minister is sharing something from PMO, then that is the formal information. But if he is just congratulating Team India personally, then it is informal. But the people who are on such positions, they never actually do something by their personal account, because if you'll see all the greetings and everything, it comes from the Twitter handle of PMO only. It doesn't come from and no formal information comes from personal account. Formal information only comes from the account of the particular department or office. So yes, if the information is shared by an office or by a department, it is very much authentic and it is considered as formal. But if someone is doing it from their personal accounts, then it is informal kind of information. You could use it to supplement your point, but you can't use it as a prime source. Thank you, ma'am. Ma'am, if for let's take an example for this. For example, I went through all we are like we talked about downward, upward, horizontal, basically lateral, diagonal, and vertical. For Mhm. example, if I have a problem with a certain officer, but Okay. I tag the officer's superior on social Mhm. media and I tell my problem to I describe my problem to him, and he takes an action on this. Will it be Mhm. a diagonal communication as a for and diagonal and formal, or will it be an informal communication, but because action has been taken now it is considered formal? First of all, whenever you're filing a complaint, it is never informal. It is a formal thing that you're doing. And secondly, obviously, it's going to be diagonal, because you are superseding your superior and directly complaining to the head authority. So it would be formal and diagonal. And always keep it in mind, whenever you have to file a complaint against anybody,
that is a formal thing. हाँ, अगर घर पे शिकायत कर रहे हो, that is informal. But if you're doing it in some organization, then that is completely formal. We never file complaint informally. That has to go formally only. So if the channel, it does not matter if there, whatever the channel is, if there is a complaint that, okay, except from the household thing, if there Yeah. is a complaint and there is a office setting, then we can say that it will be formal in every case. Yeah, it would be formal in every case. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. My doubts are solved. Okay, thank you. I hope everyone's doubt and queries are addressed. Thank you so much, Janvi ma'am, for addressing everyone's doubt and query so well. And to formally conclude this session, I express our gratitude and invite Krishna ji to deliver the vote of thanks on behalf of Shodh Foundation. Krishna ji. Thank you very much, Jahnvi for your patient explanation, detailed explanation, and patiently answering all the queries, even in between your lecture. For the very good presentation also. I believe our aspirants are benefited by your explanation and all. They make good use of your classes. Thank you once again for your time and patience. I also thank all the participants for joining and making use of this opportunity. There will be one more session tomorrow. I request all of you to join, and because the communication chapter itself is big chapter, we have scheduled it for 3 sessions. Tomorrow will also be there this same session. I request everyone to join again. Thank you. And to finally, as a fitting conclusion to today's session of ideas, I invite again Krishna ji to lead us to serenity with the Kalyan Mantra. Krishna ji. ॐ शान्तिः 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 Thank you so much, Krishna ji. And I thank all of you, the speakers and the participants who made this event possible. Thank you so much, everyone. Namaskar, Jai Hind to everyone.